Hello students, now we'll do the development of GIT part 7. I recommend you to first of all go through all parts of the development of GIT, then you can easily understand this part. In this part mainly we will do the development of midgut. सोचो इससे पहले हमने development of foregut कर ली है. So development of midgut में हम करेंगे क्या? इसमें हम करेंगे from this area. This is the duodenum, second part of duodenum. From second part of duodenum, then third part of duodenum, fourth part of duodenum, then jejunum coils. These are jejunum, ileum, then cecum, appendix, ascending colon, and the proximal two-third of the transverse colon. So आज हम डेवलपमेंट करेंगे इन ऑर्गन्स की फ्रॉम द सेकंड पार्ट ऑफ duodenum till the proximal two-third of the transverse colon. These structures will develop from midgut tube. midgut में पहले थोड़ा सा इस डायग्राम के बारे में कर लेते हैं. Again, this is the mid sagittal section. This is anterior side, or in embryo this is ventral side. This one is the dorsal side. Here is cranial and caudal head or tail end. So in this diagram you can appreciate this yellow color tube. This yellow color tube is known as the gut tube, primitive gut tube. इसके parts करेंगे हम. First part कर लिया था बच्चों हमने, that was the foregut. Last is hindgut. Today's lecture is mainly about midgut. So midgut is extended कहाँ से कहाँ होता है? This is anterior, this one is posterior intestinal portal. So midgut is extended between anterior intestinal portal to the posterior intestinal portal, and in mid sagittal section this midgut is forming a U-shaped tube. You can appreciate this tube. This is U-shaped tube. This U-shaped tube is hanging dorsally. This side is dorsal, we know, dorsally with dorsal wall. This is the dorsal wall of the embryo. This U-shaped tube is hanging dorsally with dorsal body with the help of this fold. This fold is known as the dorsal mesentery. So dorsal mesentery से midgut is hanging with the dorsal wall, and you can appreciate these vessels. This dorsal mesentery give pass to the area to the vessel of the midgut, and we know what is the vessel of midgut. It is the superior mesenteric vessel. So artery is the superior mesenteric artery. Now this is important. Midgut and hindgut हमें पता है midgut and hindgut में no ventral mesentery. Only in the foregut we have ventral mesentery, but in midgut and in hindgut you can appreciate we don't have ventral mesentery, we have only dorsal mesentery. Now when हमें पता है बच्चों एब्डोमेन जो डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं सिलोमिक कैविटी. सो सिलोमिक कैविटी में जब एब्डोमेन डेवलप होगा, ऑर्गन्स डेवलप होंगे, एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट एम्ब्रियोनिक पीरियड, द लिवर, डेवलपिंग लिवर and our mesonephric kidney, these are developing very fast. So जब डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो की तो लीवर और mesonephric kidneys बहुत फास्ट डेवलप होती है बिकॉज ऑफ देयर फास्ट डेवलपमेंट. यहाँ पे मिडगट से हमने बोला पहले इंटरसेनल लूप्स बनेगी. इन लूप्स के लिए एब्डोमेन में स्पेस नहीं रहती. सो इन लूप्स में के लिए एब्डोमेन में जब स्पेस नहीं है, वाई? बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ फास्ट डेवलपमेंट ऑफ liver and the mesonephric kidney. So these loops cannot develop inside the coelomic cavity, so they have to hang outside of the coelomic cavity. So इनको coelomic cavity से बाहर हैंग होना पड़ता है. जिस चीज के थ्रू ये हैंग होती हैं उनको हम बोलते हैं बर्टिलो इंटेस्टिनल डक्ट. बर्टिलो इंटेस्टिनल डक्ट से ये लूप्स जो हैं
the midgut loop, they are hanging outside with the extraembryonic coelom through the vertebrointestinal duct. This occurs because of the enlargement of liver and the mesonephric kidney, and this is known as the physiological hernia. So this is a normal procedure. Physiological hernia is normal procedure. ओके ये कोई पैथोलॉजी नहीं है बच्चों. फिजियोलॉजिकल हर्निया, फिजियोलॉजी नाम ही बता रही है, इट इज नॉर्मल प्रोसीजर है. सो व्हाट इज फिजियोलॉजिकल हर्निया? इट इज द नॉर्मल प्रोसीजर इन विच द पार्ट ऑफ द मिडगट लूप्स आर हैंगिंग आउटसाइड of the coelomic cavity. Now, what is the rotation of midgut tube? It is very important. इस पे short note आता है rotation of midgut tube. So again बच्चों हम इसी एरिया में फोकस कर रहे हैं. This is the area which we are focusing. So हुआ क्या? Because of the development of the hepatic but liver and mesonephric kidneys, ये midgut tubes जो थी बच्चों ये extra embryonic coelom के साथ में हैंग कर रही हैं, and posteriorly they are attached to posterior abdominal wall with the help of dorsal mesentery, and one artery is passing in between dorsal mesentery. ऐसे artery है, that is the superior mesenteric artery. ये superior mesenteric artery hang कर रही है with the midgut tubes. Now because of this superior mesenteric artery, so again this one is the our mid sagittal section. So you can appreciate this is the artery. So this artery divides the loops into two part. You can appreciate upper part and the lower part. यहाँ पे आप देख सकते हो एक ऊपर वाला पार्ट है इसके आर्टरी के और दूसरा पार्ट बच्चों we have the down lower part. So upper part is known as the pre-arterial part and second one is known as the post-arterial part. So now we have the two segments. It is the cranial segment, cranial or cephalic segment, which is known as pre-arterial segment, and the caudal limb, which is known as the post-arterial. So हमारे पास midgut tube जो थी, midgut tube दो parts में divide हुई, pre-arterial and post-arterial parts. क्यों divide हुई? Because of the our artery, superior mesenteric artery. Now इनके derivatives पढ़ेंगे हम. Well, the first of all, from pre-arterial segment से क्या क्या develop होता है? These all are MCQ question. First part से बच्चों first चीज develop होगी जो हमने बात की थी यहाँ से, then this thing and here. So first part से क्या develop होता है? Till this अभी हम करेंगे क्या क्या? First of all we have the lower part of the duodenum, bile duct के बाद वाला part, then jejunum and the most part of ileum except the terminal part of the ileum. Post arterial part से क्या क्या develop होता है? That is the terminal part of the ileum, cecum, appendix, ascending colon and proximal 2/3 of the transverse colon. So this slide is very important for MCQs. Now first of all the during 6th week हमने बात की है, पहले थोड़ी सी डायग्राम आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ बच्चों. वेंट्रल साइड, डोर्सल साइड, दिस इज द anterior, this one is the posterior intestinal portal, and this yellow color is the midgut tube. Here we can appreciate this thing is the superior mesentery. Superior mesentery has the superior mesenteric artery. So dorsal mesentery, this thing is the dorsal mesentery, and dorsal mesentery is hanging midgut tube and it is giving passage to the superior mesenteric vessel. Now this superior mesenteric artery has divided this loop into two parts. This one is the ventral upper part, that is the cephalic limb or pre-arterial part. Second is the caudal limb or post-arterial part, and it is hanging out because of the physiological hernia. So 6th week तक ऐसे development होती है. अब at the end of the 6th week, from the post-arterial part, a diverticulum is formed, which is known as the cecal diverticulum. So बच्चों this is cecal diverticulum.
you can appreciate this is on the anti-mesenteric part. So this area is the mesenteric border. So the sickle bud is developing from the caudal limb or the post-arterial limb from the anti-mesenteric side. Now this sickle bud, after regression of the duct, this sickle bud will divide or will form two parts. You can appreciate this thing. एक बच्चों ये वाला proximal part and loop like or thin distal part. The proximal part will form the cecum and the distal part will form the vermiform appendix. So vermiform appendix कहाँ से बनी बच्चों? सिकल बर्ड के दिस पार्ट से, और सिक्कम खुद कहाँ से बनेगा? सिकल बर्ड के दिस पार्ट से. अब नो जब डेवलपमेंट होती है, हम रोटेशन करेंगे आगे, उसके बाद दिस पार्ट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव सम ओरिएंटेशन. दिस इज ड्यूडेनम, ड्यूडेनम का पार्ट है. फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट and the fourth part, then jejunum. So this area is the junction of duodenum and jejunum. So this is known as jejuno-duodenal junction. Duodeno-jejunal junction is actual name is the duodeno-jejunal flexor. Flexor we know this turn is known as the flexor. So this flexor, duodeno-jejunal flexor, is attached with dorsum, with the posterior abdominal wall, with the help of a ligament. In embryo this is known as a superior retentional band. डोर्सल मेसेंटरी का पार्ट होता है सुपीरियर रिटेंशनल बैंड, ये इस फ्लेक्सर को हैंग करता है. इन एडल्ट दिस इज नोन एज लिगामेंट ऑफ ट्रिट्स और आल्सो नोन एज द सस्पेंसरी मसल ऑफ द ड्यूडेनम. नो डेवलपमेंट ऑफ मिडगट को हम 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट स्टेज सेम बॉडी डायग्राम है, सो अब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. इन फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ था, हमारे पास लूप बनी थी, लूप बनी है. दिस लूप, ये लूप हैंग कर रही है द अम्बिलिकल सैक आउटर साइड. लूप इज हैंगिंग एंड इट हैज 2 पार्ट्स. अब हमें पता है बिकॉज ऑफ द लीवर डेवलपमेंट, वही वाली फर्स्ट स्लाइड, ये लूप बाहर को हैंग करेगी. इट हैज 2 पार्ट्स, प्री आर्टेरियल एंड द पोस्ट आर्टेरियल पार्ट. नाउ this pre-arterial part will form the coils because of the development of liver, fast development of liver. ये pre-arterial part और थोड़ा सा बच्चों बाहर वाला जो होता है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल जो होता है और थोड़ा सा डाउनवर्ड एक्सटेंड करता है. एंड नाउ इन फर्स्ट स्टेज दिस इज इंपॉर्टेंट. फर्स्ट स्टेज में सबसे पहले रोटेशन ऑफ गट होगी. फर्स्ट स्टेज में रोटेशन ऑफ गट होगी, मिड गट की रोटेशन स्टार्ट हुई बच्चों. हमारे पास सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी बनी. सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी ने लूप को 2 में डिवाइड किया, द प्री एंड द पोस्ट आर्टेरियल पार्ट. नाउ ये हमें पता है बाहर है, सो द फर्स्ट रोटेशन इज आउटसाइड ऑफ द एब्डोमेन, डेवलपिंग एब्डोमेन के बाहर, और ये फर्स्ट रोटेशन एंड इट इज अकरिंग अबाउट 90 degree around the superior mesenteric artery, 90 degree around the superior mesenteric artery, and it is anti-clockwise if I am watching from front. So इसका मतलब क्या बच्चों, इन 2 लूप्स के बीच में एक आर्टरी बनी, उस आर्टरी के अराउंड अब ये रोटेशन होगी. इस रोटेशन की वजह से क्या हुआ, पहले हुई कहाँ, इस आर्टरी के अराउंड 90 डिग्री रोटेशन हुई. 90 डिग्री रोटेशन होने की वजह से जो अपर पार्ट था, दैट इज द सिफेलिक पार्ट या प्री आर्टेरियल पार्ट, अब ये रोटेट हुआ तो ये अपर वाला चला गया राइट साइड को एंड लोअर पार्ट विल नाउ टुवर्ड द लेफ्ट साइड. सो प्री आर्टेरियल बिकम राइट एंड पोस्ट आर्टेरियल बिकम लेफ्ट. फर्स्ट रोटेशन में बच्चों ये होता है 90 डिग्री रोटेशन होती है एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम वेंट्रल साइड. आगे मैंने वीडियो भी डाली है छोटी सी, उसमें आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा. इन सेकंड स्टेज में क्या होगा, अब लूप्स डेवलप हो रही थी, फर्स्ट रोटेशन हो गई है. फर्स्ट रोटेशन के आगे की बात करने लगे हम.
अब फिजियोलॉजिकल हर्निया जो है, फिजियोलॉजिकल हर्निया की बात की थी हमने, 5th to 10th वीक तक होता है फिजियोलॉजिकल हर्निया। अब फिजियोलॉजिकल हर्निया जो है वो रिग्रेस होना स्टार्ट होगा। इसमें क्या होगा बच्चों, हमने बोला हमारे पास दो पार्ट बने, सिफेलिक पार्ट दैट इज द प्री आर्टीरियल पार्ट एंड द क्वाडल पार्ट दैट इज द पोस्ट आर्टीरियल पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल अब बच्चों सेकेंड वीक में लीवर की डेवलपमेंट एज वेल एज द डेवलपमेंट ऑफ मेसोनेफ्रिक किडनी विल बी नॉर्मलाइज। सो पहले बहुत फास्ट डेवलपमेंट हो रही थी, इसलिए लूप को अंदर जगह नहीं थी, बाहर जाने की जरूरत पड़ी। अब डेवलपमेंट नॉर्मल होगी तो लूप्स कैन री एंटर इनसाइड द एब्डोमेन। तो लूप्स री एंटर कैसे होंगी, लूप्स के री एंटर एन मास नहीं आ सकती बिकॉज ऑफ बर्टिलो इंटरस्टिनल डक्ट स्मॉल होता है, तो सारी की सारी लूप एकदम एब्डोमेन के अंदर नहीं आ सकती बच्चों, पार्ट्स में आएंगी। उसका पैटर्न है दैट इज मेनली फॉलोड इन दिस सेकेंड स्टेज। इसमें क्या होगा बच्चों, सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट सिफेलिक लिम्ब प्री आर्टीरियल जो पार्ट था वो एंटर होता है। तो फर्स्टली एंटर कौन सा होता है, प्री आर्टीरियल पार्ट। प्री आर्टीरियल पार्ट जब एंटर होगा, एब्डोमेन में एंटर होगा, हमने पहले बोला था सिफेलिक जब फर्स्ट 90 डिग्री रोटेशन के बाद राइट बन जाता है, दैट मीन्स ये राइट साइड को एंटर होगा एब्डोमेन में। सो द कॉइल्स जो हमारे पास थी, इंटेस्टिनल लूप्स जो हमारे पास थी, इंटेस्टिनल लूप्स सबसे पहले राइट साइड वाली, राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन में एंटर करेंगी। अब ये राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन में एंटर करेंगी एंड हियर यू कैन अप्रिशिएट, सो राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन में एंटर करेंगी। इनको एंटर करने के लिए इनके लिए एक तो आपके पास बर्टिलो इंटेस्टिनल डक्ट था दैट वाज स्मॉल, सो एन मास एंटर नहीं कर पाया। दूसरा हमने बोला था हमारे पास एक डाइवर्टिकुलम बना, सिकल डाइवर्टिकुलम। तो सिकल डाइवर्टिकुलम के चक्कर में उसकी डेवलपमेंट के कारण पोस्ट आर्टीरियल पार्ट जो है वो अंदर एकदम एंटर नहीं कर पाता। सो सिकल डाइवर्टिकुलम इज ए ऑब्जर्वर, नेचुरल ऑब्जर्वर विच विल अलो द रोटेशन इन प्रॉपर वे। अब क्या हो बच्चों, अब राइट साइड ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्डोमेन में री एंटर कर रहा है, तो वो राइट साइड को एंटर करेगा। दैट मीन्स एट दिस लेवल जेजुनम एंड द लोअर पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम जो से हमने बोला था मिडगट से बनेगा, एज वेल एज द पार्ट ऑफ द इलियम, लोअर पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, जेजुनम एंड पार्ट ऑफ द इलियम, दे आर प्रेजेंट इन ऑन राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन। ओके, बट राइट साइड इनकी प्रॉपर पोजीशन तो है नहीं, एंड विद द डेवलपमेंट लूप्स ज्यादा एंटर करेंगी। जब रूट ज्यादा एंटर करेंगी लूप्स, तो राइट साइड ऑफ एब्डोमेन में अब स्पेस नहीं बची, अब स्पेस नहीं बची, दैट्स बाई 90 डिग्री रोटेशन बच्चों बाहर हुई थी। अब सेकंड 90 डिग्री रोटेशन होगी, सेकंड 90 डिग्री रोटेशन में जो राइट साइड में पार्ट आया था दैट वाज द लोअर पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, लोअर पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, ये पार्ट राइट साइड में था। अब ये 90 डिग्री रोटेट हुआ और ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, एडल्ट पोजीशन में चला गया। यहाँ से 90 डिग्री रोटेट होके एडल्ट पोजीशन में चला गया। दैट मीन्स ड्यूडेनम ने अपनी सी बना दी और ड्यूडेनम स्टमक के पास आई। दैट मीन्स इट इज नाउ ऑन लेफ्ट साइड, जेजुनम इज ऑन लेफ्ट साइड एंड इलियम इज इन इट्स एडल्ट पोजीशन। सो सेकंड 90 डिग्री रोटेशन जो हुई बच्चों वो हुई इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। और क्यों हुई, बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द लूप ऑफ द इंटेस्टाइन। लूप्स के लिए राइट साइड में इतनी स्पेस नहीं रही, उसकी वजह से अब ये राइट साइड जब स्ट्रक्चर लेफ्ट साइड को गए तो दे पासेस बिहाइंड द सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स, दैट्स व्हाई the jejunum is present behind the superior mesenteric vessels. So this rotation is same, 90 degree rotation of midgut हुई inside the abdomen, same ये भी बच्चों एंटी क्लॉकवाइज होती है। ओके, सो नाउ द थर्ड स्टेज। सो एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे बच्चों हमारे पास राइट साइड में तो लूप्स ऑफ इंटेस्टाइन है। सो राइट साइड एब्डोमेन की बच्चे की फीटस की इज फिल्ड विद द लूप्स। सो राइट साइड के पास तो स्पेस है नहीं, लेकिन हमने बोला था हमारा जो पोस्ट आर्टीरियल पार्ट था उसमें सिकल बड है। दैट मीन्स अब थर्ड पार्ट में दिस सिकल बड हैज टू एंटर इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी।
इसके पास राइट साइड में तो स्पेस है नहीं, सो दिस सिकल बर्ड विल एंटर इन द लेफ्ट आइलियक फोसा। बट वी नो सिकल बर्ड से क्या बना, सिक्कम एंड अपेंडिक्स। सिक्कम एंड अपेंडिक्स की पोजीशन तो है ये वाली, दिस इज द राइट आइलियक फोसा, ये एंटर हुए लेफ्ट आइलियक फोसा में। सो थर्ड स्टेज में बच्चों सिक्कम एंड द अपेंडिक्स दे विल रीच टू देयर एडल्ट पोजीशन, इसको हम बोलते हैं थर्ड स्टेज ऑफ द रोटेशन। अब इसके बारे में लिटिल बिट डिस्कस कर लेते हैं। तो थर्ड स्टेज में क्या हुआ, हमने अभी बोला दैट द पोस्ट आर्टेरियल पार्ट ऑफ द एब्डोमेन डेवलपिंग एब्डोमेन विल एंटर इनसाइड द abdominal cavity and it will enter into left iliac fossa because right iliac fossa में स्पेस ही नहीं थी। now from here these have to reach here, so they will first of all the sickle bird will rotate। इस डायग्राम में आ जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इमेजिन करें कि सिकल बर्ड यहाँ था, so first rotation it will take 90 degree rotation from here 90 degree rotation to here, so 90 degree rotation, ये थर्ड रोटेशन हुई इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी हुई है। सो अगेन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होती है बच्चों 90 डिग्री। इन दिस वे द सिकल बर्ड विल रीच टू द सब हिपैटिक, दिस इज द हेपर एरिया डेवलपिंग लिवर, so the sickle is present now at the सब हिपैटिक एरिया। और जब सिक्कम बच्चों ऐसे डेवलप होता है इसकी वजह से दिस पार्ट will form the transverse colon and this will lead the transverse colon anterior to the mesentery। so transverse colon mesentery से anterior क्यों हुआ, because of this rotation, थर्ड स्टेज में जो रोटेशन होती है इसलिए ट्रांसवर्स कोलन मेसेंट्री के एंटीरियर होता है। नाउ एट दिस पॉइंट सिकल बर्ड इज सब हिपैटिक, सो इस 90 डिग्री रोटेशन के बाद सिकल बर्ड सब हिपैटिक हुआ। लेटर ऑन दिस विल ग्रो डाउनवर्ड ग्रो करेगा एंड इट विल रीच टू द राइट इलियक फोसा। सो सिक्कम आगे बच्चों राइट इलियक फोसा में, दैट मीन्स सिक्कम एंड अपेंडिक्स विल डेवलप इनटू राइट इलियक फोसा। इन दिस वे सब हिपैटिक से राइट इलियक फोसा में भी पार्ट ऑफ द colon develop हुआ। so this part is known as the ascending colon। so ascending colon is the part of the colon which develop last। मिडगट से सबसे लास्ट में क्या डेवलप हुआ, असेंडिंग कॉलन। और फर्स्ट एंटर क्या होता है बेटा, दैट इज दी जिजुनम सबसे पहले एंटर होती है, असेंडिंग कॉलन लास्ट में डेवलप होता है। तो इस स्लाइड में आपको रोटेशन ऑफ गट को थोड़ा सा सिंपली बताया है। रोटेशन ऑफ गट टोटल होती है सुपीरियर मेसेंट्री के अराउंड 270 डिग्री, 3 स्टेजेस में होती है। हमने बोला 90, 90 एंड 90 डिग्री। फर्स्ट 90 डिग्री is outside of the abdomen, that is the in the umbilical herniated sac, that is the in the physiological hernia, and second and third they are present inside the abdomen। first में क्या हुआ, डायग्राम में क्या बताना चाह रहा है बच्चों, this is the superior mesenteric artery, then we have the pre-arterial and post-arterial, pre-arterial segment and we have the post-arterial segment। so रोटेशन से पहले, ये वेंट्रली सामने से देख रहे हैं बच्चे, रोटेशन से पहले प्री आर्टेरियल पोस्ट आर्टेरियल। अब फर्स्ट रोटेशन हुई कहाँ हुई, इन द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। फर्स्ट रोटेशन में 90 डिग्री रोटेशन अराउंड दी सुपीरियर मेसेंट्री, सो 90 डिग्री रोटेशन हुई तो प्री आर्टेरियल इज नाउ राइट एंड पोस्ट आर्टेरियल इज लेफ्ट। ओके, ये हमने बात की थी, वही चीज रिपीट हो रही है, प्री आर्टेरियल इज राइट एंड पोस्ट आर्टेरियल इज लेफ्ट। नाउ अब राइट वाला पहले एंटर होगा एब्डोमेन में, राइट वाला एब्डोमेन में अंदर पहले एंटर होगा, दैट्स वाई कॉइल्स पहले राइट में होती हैं, कॉइल्स सारी राइट होती हैं, दैट इज स्मॉल इंटरसाइन। जिजुनम, ड्यूडेनम, इलियम राइट में है। नेक्स्ट रोटेशन में क्या हुआ, जिजुनम, इलियम इनको जाना है अपनी एडल्ट पोजीशन में लेफ्ट साइड में। सो नेक्स्ट 90 डिग्री रोटेशन हुई इनसाइड द एब्डोमेन, इनसाइड द एब्डोमेन रोटेशन हुई, सो ये अपनी एडल्ट पोजीशन में आई।
लास्ट पार्ट में क्या हुआ, थर्ड 90 डिग्री रोटेशन में क्या होगा, पोस्ट आर्टीरियल पार्ट विल एंटर, पोस्ट आर्टीरियल पार्ट जो था, पोस्ट आर्टीरियल पार्ट हमने बोला वो एंटर होगा पहले, देन इट विल रीच टिल द सब हेपेटिक एरिया, दिस इज अगेन 90 डिग्री रोटेशन. So first 90 degree, second 90 degree and third 90 degree, total is 270 degree rotation. After the rotation of the midgut, next process is the fixation. अब organ बच्चों fix होंगे. So what is fixation? Fixation वो प्रोसेस है जिसकी वजह से organ intraperitoneal या retroperitoneal रिलेशन में आते हैं. सो पेरिटोनियम के साथ कैसे रिलेशन बनेगा वो फिक्सेशन से बनता है. सो ऑर्गन्स अपनी अपनी पोजीशन में आ गए हैं आफ्टर डेवलपमेंट. नाउ हमने बोला यहाँ सिर्फ डोर्सल मेसेंट्री होती है, वेंट्रल मेसेंट्री तो होती नहीं है. सो डोर्सल मेसेंट्री ऑफ द असेंडिंग कॉलन, इसका जाइगोसिस हो जाएगा. जाइगोसिस हमें पता है, वो आप पेरिटोनियम वाले लेक्चर में देख सकते हो. जाइगोसिस हो जाएगा एंड इट विल डिसअपियर. So the ascending colon will now fix on the posterior abdominal wall and it is non-peritoneal. That means the ascending colon is retroperitoneal. Only in the part of the jejunum and jejunum ileum and in the transverse colon the folds will remain. That's why these parts are intraperitoneal. Now, because of the formation of this transverse mesocolon, there will be the formation of the omental bursa. Behind this structure, behind the stomach and the liver, is formation of the lesser sac, and anteriorly there will be formation of greater omentum because of the fixation. The development of foregut. So, if this is foregut tube, you can appreciate this is a tube-like structure. It is centrally placed in beginning. Later on, because of the development of liver and the mesonephric kidney, this loop-like structure, the midgut, has no space in the abdomen, so it has to come out, herniate out from coelomic cavity to the extraembryonic coelom, and like this duct is known as vertebro-intestinal duct. Here is midgut tubes. So this midgut tube is dorsally attached with the dorsal wall with the help of the dorsal mesentery, and this dorsal mesentery give passes to the artery, that is the superior mesenteric artery. Now this artery will divide the tube into two parts, that is the pre-arterial and post-arterial. दो parts हो गए, pre-arterial and post-arterial. This blue is post-arterial, white is pre-arterial. In post-arterial part there will be development of the सिकल बड, यहाँ कहीं सिकल बड होगा बच्चों. लेटर ऑन नाउ रोटेशन में क्या है, द फर्स्ट रोटेशन, फर्स्ट स्टेज ऑफ रोटेशन, दिस साइड, दिस ट्यूब, द प्री आर्टीरियल एंड पोस्ट आर्टीरियल पार्ट ऑफ द ट्यूब विल रोटेट टुवर्ड राइट फ्रॉम योर साइड, फ्रॉम द वेंट्रल साइड एंटी क्लॉकवाइज लाइक दिस. बीच में बच्चे आर्टरी है, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, इसके अराउंड ये रोटेट कर रहा है. नो द प्री आर्टीरियल पार्ट वाइट वाला इज राइट and blue, post arterial part is left. Here is the cecal bud. Now this is first stage. In second stage, the pre-arterial part will re-enter inside the abdomen, inside the abdominal cavity. Jejunum will first of all enter in the abdomen. So इसके पास सिर्फ right side ही है, तो ये right side में enter करेगा बच्चों first of all. And then second stage में these loops, the jejunum and the part of the ileum and part of the duodenum will again rotate around the artery toward left. इनको लेफ्ट जाना है क्योंकि ड्यूडेनम लेफ्ट होती है, तो ये जो प्री आर्टीरियल पार्ट था ये बिहाइंड द आर्टरी जाता है. ड्यूडेनम इज बिहाइंड द आर्टरी. नाउ द सिकल बड के लिए, अब सिकल बड को एब्डोमेन में एंटर होना है, री एंटर होना है. सिकल बड के लिए कोई स्पेस नहीं है, सो राइट साइड पे तो लूप्स थी, सो सिकल बड के लिए कोई स्पेस नहीं है, सो इट हैज टू एंटर टू द लेफ्ट आइलियक फोसा. सिकल बड लेफ्ट आइलियक फोसा में एंटर होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन दिस इज नॉट द एक्चुअल पोजीशन ऑफ दिस सिकल बड. So this post arterial part first of all will enter to the left side and in the left iliac fossa. Later on this cecal bud inside the abdominal cavity, in third stage this cecal bud will rotate 90 degree
अराउंड दिस आर्टरी, सेम वही आर्टरी है, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी उसके आगे से आया सिकल, बट नाउ इट इज सब हेपेटिक, लेटर ऑन इट विल बिकम द down, it will go downward toward the right iliac fossa in the adult position. So I think now it's clear the rotation of the midgut and the development of the midgut. Now congenital abnormalities of midgut, midgut की developmental abnormalities हमने बोला था वर्टिलो इंटेस्टिनल डक्ट मेनली वही है, तो उसी की सारी abnormalities हैं. In this diagram बच्चों, this is anterior abdominal wall, this is midgut, developing midgut. So there may be umbilical fecal fistula, नाम बता रहा है. हमें पता है बच्चों, in the gut tube we have the fecal material. So if the vertilo-intestinal duct is remain patent, in this diagram here vertilo-intestinal duct is patent, so the fecal material can trickle down outside of the abdominal cavity from the umbilicus. Okay. Next we have the Meckel's diverticulum. Meckel's diverticulum is important. Anatomical basis of Meckel's diverticulum. Again in this diagram, here is the ventral side, it is the dorsal side. This thing is this black color is the ventral abdominal wall, so abdominal wall है, and yellow color is the loop, developing midgut loop. So what is Meckel diverticulum? Again बच्चों हमने पहले बोला these are the abnormality of vertilo-intestinal duct. So 6th week में, at the end of 6th week, the vertilo-intestinal duct should regress. This vertilo-intestinal duct should regress. If it is not regressing तो ये different abnormalities करेगा. अब Meckel's diverticulum किसको बोलते हैं? This is the proximal part. If the proximal part of vertilo-intestinal duct persist, only proximal part, this is known as the Meckel's diverticulum. So you can appreciate that this part is hanging with anterior abdominal wall, but it is not opening. बच्चों ओपन नहीं है, ओपन होता तो फिस्टुला बन गया था, लेकिन ये सिर्फ टच कर रहा है. दैट मीन्स दिस diverticulum is intra-abdominal diverticulum, abdomen के अंदर है. So this is because of the persistent proximal part of the vertilo-intestinal duct, and this diverticulum is known as 2. इसको 2 बोलते हैं because it is present in 2% of human. It is 2 times more common in male as compared to female. It is present 2 to 3 feet proximal to ileocecal junction. Then it is about 2 inch long. So इसमें 2 to 2 आता है. That's why Meckel diverticulum is known as the 2 diverticulum. And important, it is present on anti-mesenteric side. So this side is the mesenteric side बच्चों. Meckel diverticulum is present on anti-mesenteric side. Next is enterocytoma. Enterocytoma is here. This again बच्चों, it is the defect of vertilo-intestinal duct. Now the dorsal and the distal and the proximal part of duct is regressed. Only a cyst like cavity is found. ये देखो एक कैविटी है बच्चों, दोनों साइड से क्लोज है. दिस इज नोन एज द एंटीरोसिस्टोमा, सिस्ट के नाम से बच्चों. नेक्स्ट इज रसबेरी ट्यूमर. अगेन इंपॉर्टेंट, रसबेरी ट्यूमर एट द अम्बिलिकस. सो दिस इज द रसबेरी ट्यूमर. इसमें क्या है बच्चों? सेम, दिस इज आल्सो डिफेक्ट ऑफ द वर्टिलो-इंटेस्टिनल डक्ट. ओनली द डिस्टल पार्ट अपोजिट टू मैकल्स, only the distal part of the vertilo-intestinal duct is present, rest disappeared. Only this part is present. So ये umbilicus के नीचे होता है बच्चों. So this is the anterior abdominal wall. Anterior abdominal wall umbilicus के नीचे होगा. So this gives shape of raspberry. So इसलिए इसे बोलते हैं raspberry tumor. Next we have exomphosis और omphalocele. Omphalocele में बच्चों, omphallo is the abdominal organs. So abdominal organ, from this one is the umbilicus. If the midgut fails to regress, midgut पूरी
तरह रिग्रेस नहीं हुआ. Some part of this will remain outside of the umbilicus. It is from the umbilical hernia, and this umbilical hernia, main thing, this is covered with the amnion. ये बाहर से बच्चों कवर्ड होता है पूरा प्लेसेंटा से, ऐसे एमनियन से कवर्ड हुआ. इन नेक्स्ट डिजीज हियर इज द एरर ऑफ रोटेशन ऑफ द मिडगट. अब बच्चों अगर मिडगट की रोटेशन ही नहीं होगी तो क्या होगा? व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इज द नॉन रोटेशन ऑफ मिडगट. रोटेट ही नहीं हुआ. नॉन रोटेशन में क्या होगा? क्यों हो सकती है? अगर बर्टिलो इंटरस्टिनल डक्ट बहुत डायलेटेड था, ओपन रह गया, दैट मीन्स विदाउट रोटेशन ही गट ट्यूब्स एंटर हो गई इनसाइड द एब्डोमेन. इसमें क्या होगा? फर्स्ट रोटेशन हमने बोली थी बाहर वाली 90 डिग्री वाली नहीं हुई. दैट मीन्स राइट साइड एंड लेफ्ट साइड में एब्नॉर्मलिटीज होंगी. इसमें क्या होगा? जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स लेफ्ट साइड को होने चाहिए थे नॉर्मली एडल्ट में, हमें लेफ्ट साइड होते हैं, वो राइट साइड में होंगे. नाम बता रहे हैं. दैट मीन्स जेजुनम एंड द पार्ट ऑफ ड्यूडेनम इज प्रेजेंट इन राइट साइड. सिक्कम ascending colon होगा ही नहीं, and other part of the large intestine are present on the left side. This is non rotation. Next is mal rotation. Mal rotation भी little bit non rotation की तरह होती है. It is also known as the reverse rotation. Mal rotation में क्या हुआ? If the cecum is entered abnormally, cecum पहले अंदर आ गया. हमने बोला सिक्कम लास्ट में आता है, लेकिन सिक्कम ही फर्स्ट ऑफ ऑल एब्डोमेन में एंटर हो गया. दैट इज नोन एज द माल रोटेशन. इन दिस वे सिक्कम इज प्रेजेंट लाइक हियर एंड अदर पार्ट ऑफ द गट आर प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड. नेक्स्ट इज डेवलपमेंटल डिफेक्ट ऑफ सिक्कम एंड द अपेंडिक्स. हमने बोला था सिक्कम लेफ्ट आइलियक फोसा में एंटर होता है, देन 90 डिग्री रोटेशन, सब हिपैटिक, देन राइट में आएगा. अब अगर सिक्कम की रोटेशन में डिफेक्ट आया तो सिक्कम में भी इन लेफ्ट आइलियक फोसा, सिक्कम में भी सब हिपैटिक. अब अगर सिक्कम बच्चों सब हिपैटिक होगा तो अपेंडिक्स भी सब हिपैटिक होगी. सो इन दिस केस इफ पेशेंट हैज अपेंडिक्साइटिस तो उसकी पेन किससे मिमिक करेगी? कोली के, कोलिसिस्टाइटिस के. सेकंड, इन दिस केस हमने पहले बोला था अगर सिक्कम राइट आइलियक फोसा में जाएगा तो ही असेंडिंग कॉलम डेवलप होगा. सो नो असेंडिंग कॉलम. थैंक यू. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क.